Good morning, everyone. This is Yanilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment A1. Our subject is SST, and in SST we are doing history. So, in today's video we will discuss over the chapter 2 of history, that is from trade to territory. So, now let's see. So now we will discuss over some main points of the chapter, that is overview. The last powerful Mughal ruler was Aurangzeb, and after his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. By the second half of the 18th century, a new power emerged on the political horizon, the British. तो जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था वो था औरंगजेब, और 1707 में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे ऐसे मुगल गवर्नर्स हुए, सूबेदार हुए, बड़े बड़े ज़मींदार हुए जिन्होंने दावा किया अपनी खुद की क्षेत्रीय उन्होंने जो किंगडम्स थे वो इस्टेब्लिश कर लिए. By the second half of the 18th century, a new power emerged on the political horizon, the British. So, अगर हम बात करें 18th century की हाफ में, तो एक नई शक्ति जो थी वो उभर कर सामने आई थी पॉलिटिकल हॉरिजॉन में, एंड दैट वाज द ब्रिटिश ओनली. So, as you seen the topic of the chapter, that is trade to territory, because Britishers came to India for the trade only, and how they became the masters of the territory, that we will discuss in this chapter. So now let's see. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters over a vast empire? In this chapter you will see how this came about. क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश थे, वो ओरिजिनली हमारे देश में आए थे एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के तौर पर, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो हमारे देश को टेरिटरी के रूप में अर्जित करें. फिर ऐसा कैसे हुआ कि वो एक कितने बड़े इंडियन साम्राज्य के मास्टर बन गए, मालिक बन गए? इस चैप्टर में हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज East India Company comes east. How East India Company established in India, that we will read. The East India Company in 1600 acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting the company sole right to trade with the East. East India Company को 1600 ईस्वी में ये चार्टर मिला था रूलर ऑफ इंग्लैंड से, दैट वाज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एट दैट टाइम, दैट द कंपनी कैन हैज़ द राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. कंपनी को ये राइट है कि वो ईस्ट में आकर व्यापार कर सके. According to the charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands to buy goods at a cheaper price and carry them back to Europe to sell at higher prices. So, इस चार्टर के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि कंपनी जो है वो अक्रॉस द ओशियंस, समुद्रों के पार जा सकती है नई लैंड ढूंढने के लिए, जहां पर वो माल को सस्ते प्राइस पर खरीदे और उसे कैरी करके यूरोप वापस लेकर आए और यहाँ पर आकर हायर प्राइस पर बेचे. The Portuguese established their presence on the western coast of India and had their base in Goa. So जो पुर्तगाली थे वो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर चुके थे वेस्टर्न कोस्ट पर इंडिया के, एंड उनका जो बेस था वो गोवा था. By the early 17th century, the Dutch were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean, and very soon the French arrived on the scene. So 17th century की शुरुआत में जो डच थी वो एक्सप्लोर कर रहे थे कि वो पॉसिबिलिटीज संभावनाएं ढूंढ रहे थे कि वो इंडियन ओशियन में जल्द से जल्द यहाँ इंडियन ओशियन में आकर यहाँ पर वो व्यापार कर सकें, और जल्द ही इस सीन में फ्रेंच भी आ गए थे. All the companies are interested in buying the same things. जितनी भी कंपनीज थी, ये पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, ये इंटरेस्टेड थे एक जैसी चीज़ें खरीदने में. द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन वर इन ग्रेट डिमांड. सो जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन था, सिल्क था, पेपर, काली मिर्च, ये क्या थी, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थे. The urge to secure markets led to fierce battles between the trading companies. और जो दबाव था मार्केट का, सिक्योर करने का मार्केट को, इसने क्या किया, जो कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज, व्यापारिक कंपनीज थी, जो उनके बीच में फीर्स बैटल स्टार्ट कर दिए. ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन.
अब क्या किया जाने लगा, ट्रेड्स जो थे वो कैरिड किए जाने लगे अपनी ही भुजाओं पर, और जो ट्रेडिंग पोस्ट थी उनको प्रोटेक्ट किया जाने लगा फोर्टिफिकेशन के द्वारा, किलाबंदी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस द ट्रेड इन बंगाल, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार शुरू किया बंगाल में। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में सेटअप की गई। इट वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। ये एक बेस था जहां से कंपनी के ट्रेडर्स जो व्यापारी थे वो ऑपरेट करते थे, एंड दे वर नोन एज फैक्टर्स। इन द वेयर हाउस ऑफ द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री का वेयर हाउस था, गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। वहां पर माल को स्टोर किया जाता था एक्सपोर्ट करने के लिए। द कंपनी बाय 1696 बिल्ट अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और कंपनी ने क्या किया, 1696 में एक फोर्ट बिल्ट किया अपने सेटलमेंट के चारों तरफ। द कंपनी कॉन्टिन्यूसली ट्राई टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन। कंपनी जो थी वो लगातार ट्राई कर रही थी ज़्यादा छूट के लिए, एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। और जो ऑलरेडी उनको सौभाग्य प्राप्त थे उसको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर रही थी। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। नाउ ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, एंड नाउ हाउ द ट्रेड लेड टू बैटल्स। ब्रिटिशर्स जो आए थे भारत में वो तो व्यापार के लिए आए थे, किस प्रकार से जो व्यापार था वो बैटल्स, युद्ध तक पहुंच गया। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। जो कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब्स के बीच बंगाल के, वो बहुत तीव्र था। द बंगाल नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। सो बंगाल नवाब्स ने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी को कंसेशन के लिए जो छूट दी जा रही थी, और उन्होंने डिमांड की, बड़े ट्रिब्यूट की, ताकि कंपनी को ट्रेड के जो राइट दिए जा सकें, बिकॉज एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स वर नीडेड टू टेक द राइट टू ट्रेड इन इंडिया। तो उन्होंने उसके लिए बड़े ट्रिब्यूट की डिमांड की, डिनाई कर दिया एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, और स्टॉप कर दिया उनको फोर्टिफिकेशन बढ़ाने से, किलेबंदी को बढ़ाने से। They also claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawabs. बंगाल नवाब्स ने ये भी क्लेम किया कि जो कंपनी है वो बंगाल गवर्नमेंट के जो ह्यूज अमाउंट है रेवेन्यू का उसका हरण कर रही है, एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, और जो नवाब्स हैं बंगाल के उनकी अथॉरिटी को दुर्बल बना दे रही है। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू confrontation and finally culminated in the famous battle of Plassey. So ये जो conflict था between the Nawabs of Bengal and the East India Company, ये finally धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। confrontation जो था वो काफ़ी आगे बढ़ा और वो एक दूसरे का मुकाबला करने लगे, एंड फाइनली इनका जो ये confrontation था ये बैटल ऑफ प्लासी में चेंज हो गया, द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। द फेमस Battle of Plassey. In 1756, Ali Vardi Khan died and Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब बने बंगाल के। द कंपनी ट्राई टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज राइवल्स टू बिकम द नवाब। कंपनी ने क्या किया, सिराजुद्दौला के एक राइवल की, दुश्मन की मदद की नवाब बनने में। आफ्टर सिराजुद्दौला केम टू नो अबाउट द कंपनीज स्ट्रेटेजी, जब सिराजुद्दौला को कंपनी की इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता चला, ही आस्क्ड देम टू स्टॉप मेडलिंग इन देयर पॉलिटिकल अफेयर्स, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि पहले तो वो उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में अपना हस्तक्षेप बंद कर दें, फोर्टिफिकेशन बंद कर दें, किलाबंदी और जो रेवेन्यू है उनको पे करना शुरू करें। इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक ऑफिशियल हुआ करता था इन ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो था वो युद्ध का ऐलान कर दिया। The main reason for the defeat was that the forces led by Mir Jafar never fought the battle. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. So क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो था वो वॉर बोल दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने,
इस वॉर में जो प्लासी का बैटल था इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, बिकॉज इसका मेन रीज़न ये था कि जो फोर्स थी उनके पास, जो आर्मी थी जिसका नेतृत्व किया जा रहा था मीर जाफर के द्वारा, उसने कभी भी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं था। और जो बैटल ऑफ प्लासी है ये इसलिए भी बहुत फेमस बना था बिकॉज ये पहली ऐसी जीत थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में मिली थी। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। जो पहला ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, दैट वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। वो था अपने ट्रेड में बढ़ावा करना। इफ इट कैन बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, अगर ये बिना किसी जीत के, बिना किसी युद्ध के किया जा सकता था, थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स की हेल्प के द्वारा, देन टेरिटरीज नीड टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। तो क्या करते थे वो, डायरेक्टली जो टेरिटरीज हुआ करती थी उनको टेक ओवर कर लेते थे। बट वेरी सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रेदर डिफिकल्ट। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने ये देखा कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट था। In 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. So 1765 में क्या हुआ, जो मुगल एम्परर थे उन्होंने कंपनी को अपॉइंट कर दिया as the Diwan of the provinces of Bengal. It allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. इसने ये अलाउ कर दिया कंपनी को कि वो जो बंगाल के बड़े बड़े रिवेन्यू हैं उनको, रिसोर्सेज हैं रिवेन्यू के, उनको यूज़ कर सकती है। From the early 18th century, the company's trade with India has expanded. और 18th century की स्टार्टिंग में ही जो कंपनी का ट्रेड था, जो व्यापार था इंडिया में, वो बहुत बढ़ गया था। गुड्स फ्रॉम इंडिया हैड टू बी ब्रॉट विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। सो क्या किया जाता था, गुड्स लिया जाता था इंडिया से, माल लिया जाता था, विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्ट किया जाता था फ्रॉम ब्रिटेन। So here you can see the picture that is given in your book also, figure 6. नवाब सिराजुद्दौला of अवध with his sons and the British resident. यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला हैं अपने बेटों के साथ और ब्रिटिश रेजिडेंट भी हैं। ये पेंट की गई है टिली कैटल ऑयल के द्वारा 1772 में। द ट्रीटीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर, जो ट्रीटीज थी जिन्होंने फॉलो किया था बक्सर के बैटल को, फोर्स नवाब सिराजुद्दौला टू गिव अप मच ऑफ इट्स अथॉरिटी। और उसने फोर्स किया कि सिराजुद्दौला जो है वो अपनी आधे से ज़्यादा अथॉरिटी को गिव अप कर दें, छोड़ दें। Here, however, he poses in regal splendor, towering over the resident. Company officials become naboobs. How the officials of the company, जो अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, they became naboobs. After the Battle of Plassey, the company officials forced the actual Nawabs of Bengal to give land and vast sums of money as personal gifts. So जब बैटल ऑफ प्लासी में नवाब्स जो थे वो हार गए थे, सो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने दबाव डालना स्टार्ट कर दिया एक्चुअली में बंगाल के नवाब्स के ऊपर कि वो अपनी लैंड और जो उनकी बड़ी बड़ी सम है, पैसों का, मनी है, वो पर्सनल गिफ्ट के रूप में दें। सो व्हेन रॉबर्ट क्लाइव लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्च्यून वॉज वर्थ डैश डैश यूरो। इतनी यूरो उनकी जो थी वो वर्थ कमाई हुआ करती थी। In 1764, he was appointed as the governor of Bengal and was asked to remove corruption in company administration. 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया गया, कंपनी का गवर्नर अपॉइंटेड किया गया ताकि वो जो बंगाल में, ताकि कंपनी में जो करप्शन हो गया था उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, वो उसको रिमूव कर सकें। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स डाइड एंड अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर। बहुत सारे ऐसे कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो बहुत जल्द ही मर गए थे बिकॉज ऑफ डिजीज, बिकॉज ऑफ वॉर। सम ऑफ द ऑफिशियल्स केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर डिजायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और कुछ ऐसे हम्बल बैकग्राउंड के ऑफिशियल्स भी थे जिनकी मेन डिज़ायर ये थी कि वो इंडिया आएँ, यहाँ आकर वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, कमाएँ, और उसके बाद वो वापस से ब्रिटेन चले जाएँ और वहाँ पर एक कंफर्टेबल लाइफ जिएँ। दोज हु मैनेज्ड टू रिटर्न विद वेल्थ वर कॉल्ड नबूब्स। और जो मैनेज कर सकते थे अपनी बहुत सारी कमाई के साथ वापस जाना, उनको नबूब्स बोला गया। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है इंडियन वर्ड नवाब का, दैट वो कॉल्ड नबूब्स एट दैट टाइम। कंपनी रूल एक्सपेंड, हाउ द रूल्स ऑफ द कंपनी expanded at that time. After analyzing the process of annexation of Indian states, जब क्या किया, ये एनालाइज कर लिया, जो प्रोसेस था उसका एनालिसिस हो गया, जो एनेक्सेशन है इंडियन स्टेट्स का बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857 के बीच में, सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज। बहुत सारे ऐसे जो मेन एस्पेक्ट से पहलू थे वो उभर कर सामने आए। Here
एनेक्सेशन मीन्स राज्य हरण। जब बहुत सारे इंडियन स्टेट्स का हरण कर लिया था कंपनी ने, तब उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो थे वो उभर कर सामने आए। द कंपनी रियरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी। जो कंपनी थी वो बहुत कमी से डायरेक्ट अटैक करती थी किसी भी ऐसी अननोन टेरिटरी के ऊपर। It alternately used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. So किसी भी भारतीय राज्य का हरण करने से पहले ये क्या करते थे, मोस्टली ये यूज़ करते थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स कि डायरेक्टली इनको अटैक ना करना पड़े। वो जो डिवाइड एंड रूल जो उनकी एक नीति थी उसका वो यूज़ करते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। बक्सर के बैटल के बाद कंपनी ने क्या किया, रेजिडेंट्स अपॉइंट किए इंडियन स्टेट्स में। दे वर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। वो कौन थे, ये पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स थे और इनकी जॉब थी कि ये क्या करें, जो कंपनी का इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाएं। Subsidiary alliance means Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. जो सब्सिडेरी अलायंस था इसका मतलब ये था कि इंडियन रूलर्स जो थे वो अलाउड नहीं थे उस टाइम पर कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स रख सकें। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उनकी सुरक्षा जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडेरी फोर्सेज। लेकिन जो फोर्सेज का यूज़ किया जाता था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए उनको पे करना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, that the company was supposed to maintain for the purpose of its protection। और ये इसलिए करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रोटेक्शन के लिए। if the nawabs or the kings were not having the armed forces at that time, so they could not fight any battle against the Britishers। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as a penalty। So वो उन्होंने यहाँ पर कौन सी पॉलिसी यूज़ की थी कि अगर जो आर्म्ड फोर्सेज उनको दी जाती थी उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर वो उसके लिए पे करने में फेल हो जाते थे तो उसकी पनिशमेंट के तौर पर उनकी जो टेरिटरी होती थी, उनकी जो राज्य होता था उनका, उसको जो था वो ले लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. So all of you have heard about Tipu Sultan, who is called the Tiger of Mysore. Let me show you the picture of Tipu Sultan, which you can see in your notebooks, in your books also. So here you can see the picture of Tipu Sultan, that is figure 7, which is given in your book also. Now let's read about Tipu Sultan, because he is also a well-known emperor at that time. So Tipu Sultan was the ruler of Mysore. That's why he is called Tiger of Mysore. Mysore, under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799, had grown in strength. So Mysore जो था वो किसकी लीडरशिप के अंडर, एक बहुत पावरफुल रूलर्स थे, टू पावरफुल रूलर्स एक्चुअली। हैदर अली जिन्होंने रूल किया था 1761 से 1782 तक, और उसके बाद उनके फेमस सन टीपू सुल्तान जिन्होंने शासन किया 1782 टू 1799 से। तो इनकी लीडरशिप के दौरान जो था वो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उभर कर सामने आई थी। It controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. So मैसूर ने क्या किया था, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था मालाबार कोस्ट पर, जहाँ पर कंपनी परचेज करती थी पेपर, काली मिर्च एंड कार्डमम, उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया था मैसूर में। टीपू सुल्तान इन 1785 स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम। टीपू सुल्तान ने क्या किया, उन्होंने टक्कर ली ब्रिटिशर्स से एट दैट टाइम, और 1785 में उन्होंने क्या किया, जो सैंडलवुड और पेपर एंड कार्डमम एक्सपोर्ट किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उन्होंने उसको बंद करवा दिया। द कंपनी फॉट 4 वॉर्स विद मैसूर। कंपनी ने इसी कारण से 4 युद्ध लड़े मैसूर के साथ, 1767 से 1769 तक, देन 1780 टू 84 तक, एंड देन 1790 टू 92, एंड द लास्ट वॉज 1799. Finally, in the last, the Battle of सेरिंगापतम, द कंपनी अचीव्ड विक्ट्री. सो आफ्टर द 4 वॉर्स फाइनली क्या हुआ, जब बैटल हुआ सेरिंगापतम का, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्ट्री मिली, उनको जीत मिल गई. Here you can see the picture that how the Britishers have taken the 2 sons of Tipu Sultan to make them hostages. Now after Tipu Sultan, it was the time to war with the Marathas. So everyone has heard about the Maratha Empire. Chhatrapati Shivaji is the main emperor who is very well known. So किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का वॉर हुआ अब मराठास के साथ.
द कंपनी फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी वॉज प्लानिंग टू डिस्ट्रॉय मराठा पावर। सो जो कंपनी थी वो लास्ट 18th सेंचुरी से प्लान कर रही थी मराठा जो पावर थी उसको डिस्ट्रॉय करने की, कि वो किस प्रकार से जो मराठा की शक्ति है उसको बर्बाद कर सके। The third battle of Panipat in 1761, the Marathas were defeated and their dream of ruling from Delhi was shattered. So जो थर्ड बैटल हुआ पानीपत का इन 1761, वहाँ पर मराठास जो थे वो डिफीट हो गए थे, हार गए थे, और उनका जो ड्रीम था कि वो दिल्ली से रूल करें वो शैटर्ड, चकनाचूर हो गया था। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, और जो मराठास थे वो डिवाइड हो गए थे बहुत सारे स्टेट्स में जिनके डिफरेंट चीफ्स हुआ करते थे, अलग अलग सरदार हुआ करते थे। बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, उनके जो राजवंश थे मराठास के, दे वर नोन एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। These chiefs were held together under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune. So ये क्या करते थे, these chiefs जो थे were held together, एक साथ आते थे under a Peshwa, एक पेशवा हुआ करते थे प्रिंसिपल मिनिस्टर, जो कि बहुत इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, जो कहाँ पर था, पुणे में। मराठास वर इंडल्ज्ड इन अ सीरीज ऑफ वॉर, मराठा जो थे वो एक पूरी सीरीज मान लीजिए उनकी वॉर की थी। The first war ended in 1782 with the Treaty of Salbai. There was no clear victory. जो पहली उनका वॉर था 1782 में, वो एंड हुआ था with the Treaty of Salbai, जिसमें कोई क्लियर विक्ट्री नहीं हुई थी। The second Anglo-Maratha War 1803 to 1805 was fought on different fronts, resulting the British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. उसके बाद जो सेकेंड वॉर हुआ उसमें ऑलमोस्ट जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत हुई थी, एंड फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 1819 क्रश्ड मराठा पावर। जो तीसरा वॉर हुआ था फाइनली 1817 से 1819 के बीच, उसने मराठा पावर को क्रश्ड कर दिया था, कुचल दिया था। So now next topic is the claim of paramountcy. What is paramountcy? Paramountcy is a new policy was initiated under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 83. So paramountcy जो है वो एक पॉलिसी थी जिसका कदम उठाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल थे 1830 to 1823 तक। द कंपनी क्लेम दैट इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। कंपनी ने ऐसा क्लेम किया कि उनकी जो पावर है वो इंडियन स्टेट से ज़्यादा है। In the late 1830s, the East India Company become worried about Russia. 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. उनको ऐसा लगने लगा था कि रशिया जो है वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में आ जाएगी, इंडिया के अंदर एंटर कर लेगी। द कंपनी फॉट अ prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. So कंपनी ने क्या किया, एक वॉर लड़ा अफगानिस्तान के साथ 1838 से 1842 तक, और उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया इनडायरेक्ट कंपनी रूल दिया। वहाँ पर भी उन्होंने कंपनी रूल जो था वो इस्टेब्लिश कर दिया। पंजाब वॉज एनेक्स्ड इन 1849 आफ्टर 2 prolonged wars, और पंजाब का जो राज्य हरण था वो किया गया 1849 में 2 बड़े वॉर्स के बाद। Next is the doctrine of lapse. So under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856, the final wave of annexation occurred. So Lord Dalhousie जो थे एक फेमस गवर्नर जनरल हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, 1848 से लेकर 1856 तक रहे ये। इनकी जो लीडरशिप थी उसके दौरान जो फाइनल वेव थी एनेक्सेशन की, राज्य हरण की, मीन्स इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर ले रही थी। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज अ पॉलिसी डिवाइज्ड बाय हिम। ये एक पॉलिसी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको डिवाइज किया था लॉर्ड डलहौजी ने, विच डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल आयर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। सो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी पॉलिसी, उसमें ऐसा बोला गया था कि उसमें ऐसा घोषित किया गया था दैट इफ एनी इंडियन रूलर, कोई भी भारतीय शासक, इफ ही हैज डाइड विदाउट अ मेल आयर, बिना किसी मेल उत्तराधिकारी के उनकी मृत्यु हो जाती है, दैन हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स। तो जो उनकी जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। So that has happened to Rani Lakshmibai also, a famous freedom fighter. You must have heard about her.
she was the queen of Jhansi, and at that time her husband has died because of any disease named Gangadhar Rao, and she was not having a real son at that time. She has adopted a son named Damodar Rao. So Britishers has said that they would took over Jhansi because at that time Gangadhar Rao has died and she was not having a male heir. So that's why she has fought with the Britishers at that time. So in 1856 the company took over Awadh. 1856 में कंपनी ने अवध को took over किया. Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. So 1857 का जो revolt है, जो विद्रोह है, that is very important in the history of India because it was the revolt when the fight of freedom has been started. क्या होता था जब ब्रिटिशर्स जो थे वो नवाब्स को डिपोज करते थे, उनकी पोस्ट से हटाते थे, सो वो बहुत ह्यूमिलेटिंग होता था, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाती थी. सो बिकॉज ऑफ दैट जो लोग थे अवध के, उन्होंने एक रिवॉल्ट जो था वो ज्वाइन कर लिया था. दैट वाज कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857. So next topic is setting up a new administration. How company has set up a new administration. एक नया प्रशासन जो था कंपनी ने वो तैयार किया. Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, played a significant role in the expansion of company power. So जो Warren Hastings थे, Governor General थे 1773 to 1785 ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है कंपनी की पावर को एक्सपेंड करने में. During his time, the company had acquired पावर इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. उनके टाइम पर कंपनी ने जो था वो अपनी सत्ता अर्जित कर ली थी बंगाल में, बॉम्बे में एंड मद्रास में. British territories were broadly divided into administrative units called presidency. So जो British territories थी वो broadly divided थी administrative units में, जो प्रशासनिक यूनिट थे जिनको presidencies बोला जाता था at that time. There were 3 presidencies. उस समय पर 3 presidencies हुआ करती थी. That was Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by a governor. और हर presidency जो थी वो एक गवर्नर के द्वारा रूल की जाती थी. From 1772 a new system of justice was established. 1772 से एक नया सिस्टम established किया गया कंपनी के द्वारा जस्टिस का, न्याय का. According to the new system, each district needed to have 2 courts. जो न्यू सिस्टम था उसके अनुसार हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होने की जरूरत थी. That was a criminal court जिसको फौजदारी अदालत बोला जाता था and a civil court that was called दीवानी अदालत. The Brahman Pandits have different interpretation of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र. So जो ब्राह्मण पंडित्स थे वो क्या करते थे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन था उनका, जो लोकल लॉज थे उनके बेस्ड ऑन स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र. वो क्या करते थे, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज. सो क्या किया गया, इनमें यूनिफॉर्मिटी, एकता बनाने के लिए 1775 में 11 पंडित जो थे उनको बोला गया कि वो कंपाइल करके एक हिंदू लॉ बनाएं. बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस. सो क्या किया गया, इसी प्रकार से एक मुस्लिम लॉ भी बनाया गया जिसमें बहुत सारे जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे उनको कंपाइल किया गया ताकि जो यूरोपियन जजेस थे उनको थोड़ा बेनिफिट रहे. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up in Calcutta. So क्या किया गया, एक रूल था, एक एक्ट था 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक नया सुप्रीम कोर्ट जो था उसकी स्थापना की गई, जबकि एक जो अपील कोर्ट था जिसको सदर निजामत बोला जाता था, सदर निजामत अदालत बोला जाता था, वो सेट किया गया कैलकाटा में. द कलेक्टर वॉज द प्रिंसिपल फिगर इज इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट. जो कलेक्टर था वो एक प्रिंसिपल फिगर था इंडियन डिस्ट्रिक्ट में. हिज जॉब वॉज टू कलेक्ट रिवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज. सो जो कलेक्टर था वो प्रिंसिपल फिगर इसलिए था बिकॉज उसकी जॉब ये हुआ करती थी डिस्ट्रिक्ट में वो रिवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे. किसकी हेल्प से, जजेस की, पुलिस की, ऑफिसर्स और दरोगाज की हेल्प से. So the East India Company was very, very powerful at that time. How was the company powerful? Because of the army. So now we will discuss over the company army.
इन इंडिया colonial rule brought some new ideas of administration and reform. भारत में जब colonial rule आया तब बहुत सारे नए प्रशासनिक आइडियाज आए. द मुगल आर्मी कंपोज्ड ऑफ कवलरी. जो मुगल आर्मी थी उसमें क्या हुआ करता था, कवलरी, जिनको सवर्स बोला जाता था, ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक. वो ट्रेंड सोल्जर्स होते थे जो हॉर्सेस के ऊपर बैठते थे. एंड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स. और इन्फेंट्री कौन होते थे, जो पैदल चलकर लड़ाइयाँ लड़ते थे, सोल्जर्स. द आर्मी ऑफ द मुगल वॉज डोमिनेटेड बाई कवलरी. सो जो आर्मी थी मुगल्स की वो कवलरी के द्वारा डोमिनेट थी, उनके ऊपर उनका बहुत डोमिनेशन हुआ करता था. In the 18th century, changes occurred when Mughal successors states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. So क्या हुआ, 18th century में थोड़े से बदलाव आना शुरू हुए जब जो मुगल के वंशज जो थे उन्होंने क्या किया, मुगल स्टेट्स में लाइक अवध था, बनारस था, वहाँ पर उन्होंने किसानों की भर्ती शुरू कर दी अपनी आर्मीज़ में और वहाँ पर उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में उन्होंने ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दी. The East India Company adopted the same method which came to be known as the Sepoy Army. East India Company ने भी same method को अपनाया और जिसको जाना गया Sepoy Army के नाम से. From the Indian word सिपाही meaning soldier. So Sepoy means सिपाही in India we say. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. और 19th century की starting में Britishers ने क्या किया, डेवलप किया एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग. सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया जाता था. ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर. So we were talking about the revolt of 1857. So here you can see the picture, that is figure 1, which is given in your book also. Bahadur Shah Zafar and his son being arrested by Captain Hodgson. So when the revolt of 1857 has been started, at that time it was started in Awadh, and at that time Bahadur Shah Zafar was the emperor. So after Aurangzeb there was no powerful Mughal ruler. Aurangzeb के बाद कोई मुगल powerful ruler नहीं आया, but Mughal emperors continued to be symbolically important. लेकिन मुगल emperors जो थे वो obviously बहुत ज़्यादा important हुआ करते थे, because Mughal was a great empire. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, और जब बहुत बड़ा रिबेलियन विद्रोह शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 में, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम, उस समय पर बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल एम्परर थे, वो सीन एज द नेचुरल लीडर, वो भी नेचुरल लीडर के रूप में देखे गए. वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय द कंपनी, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. So क्या हुआ, जब कंपनी के द्वारा इस विद्रोह को स्टार्टिंग में दबा दिया गया, एट दैट टाइम बहादुर शाह जफर को फोर्स कर दिया गया लीव करने के लिए अपनी किंगडम को, और उनके जो सन्स थे, उनके जो बेटे थे, उनको मार दिया गया. Now what is the conclusion of the chapter? The East India Company was transformed from a trading company to a territorial कॉलोनियल पावर. सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे देश में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी, एक व्यापारिक औद्योगिक कंपनी के रूप में आई थी एक्चुअली, और वो उसके बाद में टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन के रह गई, जिसने अपनी सत्ता को जमा लिया था हमारे देश में. इन द अर्ली 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी अराइव्ड, एक नई टेक्नोलॉजी आई. बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल over about 60% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. So क्या हुआ, 1857 में जो कंपनी थी उसने ऑलमोस्ट हमारे देश के 60% टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया था, एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो 78% पॉपुलेशन थी वो भी उनके कब्जे में थी एट दैट टाइम. बट in 1857, as I have told you, a revolt has been started and finally हमारा देश जो था that has been free from British rule in 1947. So this was chapter 2 of history. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also and in the Zoom meeting also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.